रैली फॉर द आप रैली, लोग आना चाहिए हमारे पास। रैली फॉर द रैली, रोड साइड 1 2 3 बोलने के बाद 3 के बाद बोलेंगे रैली और वैली। अपनी वाली चाहिए सर। चलो कश्मीर, चलो कश्मीर, चलो कश्मीर, चलो कश्मीर, आजाद कश्मीर, चलो कश्मीर, आजाद कश्मीर, कैमरा इस तरफ। पैराडाइज ऑफ इंडिया। सुनील कुमार, प्रेसिडेंट टाई, मैसेज देना चाहेंगे कि कश्मीर इज अ ग्रेट प्लेस टू गो. वी कैन नॉट हैव an attack on Kashmir kill tourism. We are here to revive tourism. And we believe we have the capability to get people from all over the country. यहाँ पर हम 75 लोग हैं आज. We've come from different parts of India. And we've started a program called Rally for Valley. So we will take this rally across the country, promote Kashmir is safe, and we are very certain this will support tourism. It is safe. That's why we are here. मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं ट्रैवल ट्रेड जर्नल का संपादक हूँ। आज टाई की रैली फॉर दी रैली में हम कुछ मीडिया के लोगों को भी बुलाया है। हम स्पेशल थैंक्स देते हैं टाई के प्रेसिडेंट सुनील कुमार को उनके एफर्ट्स के लिए कि दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द टूरिज़्म बैक इन द कश्मीर, जो पिछले कुछ दिनों से रुक सा गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंडर दिस स्पेशल एफर्ट ऑफ टाई दिस tourism will grow in the coming months, because these are the people, they are the real ambassadors of the community which brings tourists to any destination. देखिए, ऐसे अटैक वर्ल्ड में कहीं पे भी होते रहते हैं। वो एक सैड इंसिडेंट था। We can only pray that it doesn't happen again, because if it happens again things will go a little bad. बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि आप किसी भी डेस्टिनेशन में जाएंगे, जो खूबसूरती, जो लोग हैं वो आपको इतने प्यार से यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पे तो पूरा टूरिज़्म ही, टूरिस्ट की मतलब पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो हमारा जो एफर्ट है एज ए मीडिया टू प्रमोट कश्मीर एज ए सेफ डेस्टिनेशन एंड एज ए बेटर डेस्टिनेशन, वो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर सारे जो कनेक्टेड है हमारे टूरिज़्म के साथ, वेदर होटलियर्स, हाउस बोट ओनर्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स, गाइड एसोसिएशंस, और सारा कश्मीर हमारा चाहता है कि हमारा रिवाइवल ऑफ टूरिज़्म हो। पैराडाइज लॉस्ट फाउंड इन कश्मीर, अगेन दे शुड कम टू द पैराडाइज which is supposed to be the paradise on earth, that is Kashmir, which has no parallel anywhere within the country or abroad. We are trying, yes, I think the government is trying hard, central government mainly, and the state government is trying hard to bring in tourism, and that's why the people concerned with the tourism trade are trying their best to bring in tourism, show them, like we have got this tie here, we'll be getting another association. We are trying to show them that you see yourself and then you can sell accordingly. See yourself, they are going to Pahalgam tomorrow most probably, so that they will see the position themselves, because they are the sellers within the country, and they can show it themselves over there. And if they feel this is good, this is peaceful, this is a nice place to visit, they can get the tourists here and send the tourists to us, where we'll be ready to serve them in the fashion we have been serving them in previously. Excellent step taken by the Government of India, especially our Honorable Prime Minister, who inaugurated the train, and that will give a tremendous boost to the local industries, to the markets we are getting here, the goods from other parts of the country, and to the tourism especially. And we hope another train from Mumbai would be also sent to Srinagar, because we have been fighting for it for the last 40 years. At last, what will be your message? Come and enjoy Kashmir, the paradise on earth. मेरा नाम हिना शिराज है और मैं टाई की चेयरपर्सन हूँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की।
टाई का पूरा सपोर्ट है यहाँ पर, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट टूरिज्म इन कश्मीर. वी आर हियर टू गिव अ मैसेज दैट टूरिज्म इज़ अबव टेररिज्म. और जो उनका मोटो था फॉर स्टॉपिंग टूरिज्म इन कश्मीर, सो उनका मोटो हमें पूरा नहीं होने देना है. एंड आई एम सो ग्लैड टू सी कि यहाँ पर टूरिस्ट है. मैं लास्ट मार्च में आई वॉज इन दिस ईयर ओनली मार्च आई वॉज हियर, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे जो अब थोड़े मुझे कम लग रहे हैं. बट स्टिल आई एम हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल आर हियर इन एट डल, और वो बोट राइड एंजॉय कर रहे हैं. सो हमारा मोटो यही है कि ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट यहाँ पर आए और फिर से एक बार यहाँ पर टूरिज़्म रिवाइव हो. देखिए, सेफ़ तो पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि खाली कश्मीर में है तभी हम डरे हुए हैं. बट येस, कश्मीर इज़ सेफ बिकॉज यहाँ पर पीपल सपोर्ट बहुत अच्छा है. पीपल आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट. एंड मैं भी यहाँ पर खड़ी थी तो मेरे से 4 लोग ने आगे पूछा दैट मैम यू वांट टू डू अ डल लेक, यू वांट टू डू अ बोट राइड और नॉट. People are very nice over here and they are very supportive. My message to all the people, all the Indians are please support Kashmir. ये आपका ही देश का ही पार्ट है, और अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे then terrorism को हमें बढ़ने नहीं देना है. We have to stand against that and we all have to come Kashmir because I know that how much Kashmir is beautiful and you all love Kashmir and it's a part of India. कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है एंड रिवाइवल 100% होगा. हम लोग सब साथ में हैं एंड हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ये कश्मीर जल्दी रिवाइव होगा. डेफिनेटली आज कश्मीर की लाइवलीहुड टूरिज़्म है एंड टूरिस्ट यहाँ पे आना ही चाहिए. 100% सेफ जगह है, इससे अच्छी जगह कोई नहीं. और नंबर्स में आइए, यात्रा भी एकदम अच्छे से करिए. अमरनाथ की यात्रा अच्छी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइफ इज़ नॉर्मल इन कश्मीर. प्लीज़ कम टू कश्मीर. अभी ये जो चेनाब का जो ट्रेन सर्विस आया है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, वर्थ विज़िट है. लोगों को आना चाहिए इस पर. देखिए, कि पॉजिटिव साइन है जो हमारी टाई डेलीगेशन यहाँ पे आई हुई है. 70-80 लोगों पे ये मुस्लिम हैं. तो मेरे को लगता है वही जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद हमारा टूरिज़्म बिल्कुल डाउन हो गया था, तो लोग यहाँ पे आने से डरते थे, कतरा रहे थे. और जिन्होंने बुकिंग्स की थी कंफर्म या तो पोस्टपोन की उन्होंने या तो कैंसिल कर दी. अब उसी को रिवाइव करने के लिए पहले भी एक कुछ मेरे को लगता है 10-15 दिन पहले एक डेलीगेशन आया था महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स का. उनकी भी मैसेज थी कि विद इन द कंट्री ये मैसेज देनी है कि आप कश्मीर मतलब जो रिवाइवल है उसके साथ हैं और लोगों को यहाँ पे भेजना चाहते हैं और पॉजिटिवली उस पर काम भी कर रहे हैं. और ये जो टाई डेलीगेशन आई है, इनका भी यही मकसद है कि कश्मीर टूरिज़्म को हम सपोर्ट करेंगे. इनके ऑफिस मुल्क के हर एक कोने में हैं और इनकी मेंबरशिप भी बहुत अच्छी तादाद में है. और टाई एक मानी जानी ऑर्गेनाइजेशन है रिगार्डिंग टूरिज़्म सेक्टर इज़ कंसर्न. और हमें उम्मीद है कि जो मैसेज यहाँ से लेके जाएंगे, डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव मैसेज होगी. ये जो बाहर के हमारे मेहमान होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो हम इनके थ्रू भी काम करते हैं. इनका एक बड़ा रोल होता है एज ए प्रिंसिपल टूर ऑपरेटर्स, और हम जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं इनके कोऑर्डिनेशन होती है. तो मेरे को लगता है उसी सिलसिले में हम ये रिवाइव करने की एक बात जो चल रही है, एक मीटिंग भी हुई है, तो और भी इस पर मीटिंग्स हो रही है और कुछ और डेलीगेशंस भी आ रही है. सबका यही मुद्दा मकसद है कि कश्मीर टूरिज़्म को रिवाइव करने की ज़रूरत है और इनकी मैसेज जो है नेशनल लेवल पे और डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम करेगी. देखिए, वो डिपार्टमेंट का काम है, जो हमारा काम है हम अपना काम करते हैं. जो डिपार्टमेंट का काम है वो उनको देखना चाहिए. और मेरे को लगता है इसमें हम सब एकजुट है. डिपार्टमेंट है, हमारे CM साहब है, उनके पास टूरिज़्म का पोर्टफोलियो, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. डिपार्टमेंट भी कर रहा है, सेक्रेटरी जो हमारी टूरिज़्म है वो भी कर रहे हैं. डायरेक्टर टूरिज़्म जो भी स्टेक होल्डर जो भी टूरिज़्म के साथ जुड़ा हुआ है, सबका यही कंसर्न है कि जल्द से जल्द अगर इन पर नज़रसानी की जाए, जगहें बंद है तो उनको मतलब मेरे को लगता है डिपार्टमेंट को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि उनको जल्द से जल्द खोला जाए. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा. डेफिनेटली ट्रेन के आने से तो टूरिज़्म बढ़ेगा ही. जो एक नॉर्मल टूरिस्ट था जो कश्मीर आ नहीं पा रहा था ड्यू टू मैनी रीजंस, कभी हाई फेयर्स होते थे, कभी अकोमोडेशन की उनको प्रॉब्लम होती थी क्योंकि शायद वो कंपेयर नहीं कर सकती या उनके बजट के ओवर बजट होता था. अब आज क्या जो कटरा का टूरिज़्म है, कटरा करीब 1 करोड़ टूरिस्ट आता है. अगर हम उसमें 10-20% या ट्रेन की वजह से यहाँ पे कैटर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि 20-25 लाख टूरिस्ट इसमें एड ऑन हो सकते हैं. और एक अच्छी चीज़ है जो ट्रेन का यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी है और लोगों का एक ड्रीम भी था. जो विद इन द कंट्री लोग हैं सब कश्मीर घूमना चाहते हैं, ज़िंदगी में कम से कम एक बार आना चाहते हैं. और इसमें एक ख़ास बात मैं बताऊँगा, जो लोग कटरा
एक्स्ट्रा आते थे वो सारे कश्मीर नहीं आते थे। आज वो जो 3 घंटे का सफ़र है, आज वो हमारा वीकेंड टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। इससे वीकेंड टूरिज़्म पे भी इसका अच्छा खासा फुटफॉल हमें दिखने को मिलेगा। अगर सवेरे वो आएंगे, मॉर्निंग में 3 घंटे का सफ़र है, शाम को वो वापस भी जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से मतलब अपग्रेडेशन होती है, वो डेवलपमेंट होती है। टूरिज़्म के हवाले से मैं बात करूँगा कि ये जो ट्रेन आई है बिल्कुल टूरिज़्म के लिए आने वाले टाइम में मुफीद होगी। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये सबसे बड़ा ट्रैवल एंड टूरिज़्म एसोसिएशन कंट्री का है। करीबन 2200 ट्रैवल एजेंट्स हमारे मेंबर्स हैं। सो विच मीन्स हमारी जो आवाज़ है वो एक मायने रखती है। तो आज हमारे पास करीबन 65 ट्रैवल एजेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव कम हियर टू कश्मीर टू सेंड अक्रॉस अ पॉजिटिव मैसेज। एंड डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी सीन, अभी टाई ने अनाउंस ही नहीं किया है कि हम कश्मीर आएंगे, बाकी सारे एसोसिएशंस भी कश्मीर आ रहे हैं। एंड ये सब इनका आना डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करेगा अक्रॉस द कंट्री। यात्रा जो है हमारी पूरे साल की एक सबसे बड़ा इवेंट होता है। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड द टूरिज़्म इंडस्ट्री जो कश्मीर की स्टेक होल्डर्स है, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि अमरनाथ जी यात्रा कैन बी ए बिग गेम चेंजर, बिकॉज श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे एंड एंटायर टूरिज़्म इंडस्ट्री ओपन आर्म से उनको वेलकम करने के लिए तैयार है। कश्मीर के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास जो एयरफेयर्स है वो बहुत हाई होते थे। एंड जो ट्रेन आने से है, वी आर एक्सपेक्टिंग एंटिसिपेटिंग दैट द एयरफेयर्स विल डिक्रीज, दे विल कम टू अ नॉमिनल रेट। तो जब भी एयरफेयर्स डिक्रीज होंगे तो विल हैव डेफिनेटली मोर एंड मोर फुटफॉल कमिंग टू कश्मीर। सो ट्रेन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बस गवर्नमेंट को रेगुलेटरी करवानी है कि रेट्स जो फ्लाइट्स के हैं वो कम हो जाए। ठीक है।